you today who've joined the webinar, which is being hosted. We have with us a very eminent personality today who will be guiding us and also providing us a lot of advice on the topic that has been chosen, which is the roles and responsibilities of an OT technician. So, Dr. Pattanaik is someone who's a professional who has been in this field for a very long time. He's currently the director at the Institute of Paramedical Science and Management, New Delhi, which is popularly known as IPSL. He has 20 years plus experience. Students को guide करते रहे हैं in the field of paramedical science, and बहुत सारे workshops and in-service training sessions भी वो लिए हैं. Dr. Pattanaik IPSM को establish किए हैं with the objective of providing quality education at affordable fees, जो बहुत ज़रूरी है in the field of paramedical sciences for students who have passed 10th, 12th and graduation. So, जो courses and certificate and diplomas available है, that is open to students जो 10th, 12th and graduation कर चुके हैं. Institute of Paramedical Sciences and Management is managed and run by the Intellectual Society of India and functions under the able leadership and guidance of Dr. Pattanaik, who is committed to create world-class professionals in the field of paramedical sciences. So, Dr. Pattanaik, Swagat. Thank you for joining us. Good evening, Today. And I hope that the session that we have today will provide a lot of insights to all the participants. उनको detail में information paramedical OT technician खास करके इसके बारे में आप जानकारी देंगे. Before I begin asking questions, आपको थोड़ा overview दे दे कि an OT technician का job responsibility क्या होता है. OT technician OT operation theatre में he or she works as an assistant to the surgeon and the anesthetist in the operation section. Responsibilities जो include they उनको operation theatre को तैयार करना पड़ता है and keep the operation जो भी equipment ज़रूरी हो operation के लिए surgery के लिए उनको तैयार रखना है. So as you would know that this is a very responsible function and a role and a critical, if I may say so. Apart from setting up the OT theatre, उनको जो भी equipment है सब check करना पड़ता है, maintain करना पड़ता है, and patient को भी surgery के लिए prepare करना पड़ता है. इसके अलावा surgeon and anesthetist को जो भी help चाहिए होता है, either for arranging OT equipment या कोई भी supplies की ज़रूरत हो या पेशेंट की पोजीशन चेंज करना हो, जो भी सर्जरी और प्रोसीजर के दौरान as is advised, they assist with that. And they also have to be very cognizant of and they must know कि अलग-अलग equipment जो OT theatre में, जैसे for example ventilators या monitors या defibrillators, वो कैसे यूज किया जाता है and also how to maintain them. So as आपको पता चल गया हो that the role of an OT technician
is very very critical and important. So आज the distinguished expert जो हमारे साथ है डॉक्टर पटनायक, वो हमें इस जॉब रोल के बारे में बताएंगे एंड ऑल्सो करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में. सो आपको बिफोर आई बिगिन आस्किंग क्वेश्चंस टू पटनायक सर, हम आपको भी अगर आपके तरफ से भी कोई सवाल होगा चैट बॉक्स में प्लीज पुट अप द क्वेश्चंस. इंटरैक्शन के बाद आई विल टेक अप क्वेश्चंस जो आप पोस्ट करेंगे एंड रिक्वेस्ट डॉक्टर पटनायक टू आंसर. सर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज ओटी टेक्नोलॉजी एंड एक ओटी टेक्नोलॉजी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? सर बेसिकली सर पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज ओटी. ओटी इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी. जो कोर्स है हम उसको बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, और जो पर्सन जो इंडिविजुअल कोर्स का करता है या करने के बाद हम उसको बोलते हैं ओटी टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन. ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो कोर्स होता है वो हम करते हैं जब हम 10th या 12th पास कर जाते हैं. तो 12th या 10th के बाद जब ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हम करते हैं तो इसको ऑपरेशन थिएटर में वो एंगेज होता है. ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल्स में होता है, चाहे वो माइनर या मेजर ऑपरेशन थिएटर हो. तो उसमें जो टेक्नीशियन होता है जो ऑपरेशन थिएटर का लुक आफ्टर करता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर एक कॉम्प्लिकेटेड कई सारे चीज़ को लेके बना होता है. तो सारे इक्विपमेंट्स होता है, सारे टूल्स होता है. जो इक्विपमेंट्स हमें ऑपरेशन के ड्यूरिंग यूज़ होता है या ऑपरेशन के बाद यूज़ होता है या उससे प्री ऑपरेशन में यूज़ होता है, सारे मशीनरी को वो ऑपरेट करता है, स्टेरिलाइज करता है और ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करता है. तो जो सर्जन आते हैं वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, बेसिकली वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं रहते. ऑपरेशन थिएटर का जो ईच एंड एवरी कर्नर जिसको पता होता है वो होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन. तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करता है प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन वो जो सर्जन होता है वो एनेस्थेसिस्ट होता है उनको असिस्ट करता है. बेसिक जो काम होता है उसका ऑपरेशन थिएटर को लुक आफ्टर करना होता है. राइट सर. सो साहब अगला जो सवाल है कि आपके विचार में साहब ओटी टेक्नीशियन एज अ करियर ऑप्शन कैसा है? सो क्लास 10 या क्लास 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस है जहाँ पे ओटी टेक्नीशियन कोर्सेज अवेलेबल है? जरा इसके बारे में जरा बताएंगे. सर जो ओटी टेक्नीशियन कोर्स है या ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स है तो उसका लेवल है, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा कोर्स हो सकता है या ग्रेजुएशन कोर्स हो सकता है. पहले तो जो कोर्सेस है अवेलेबल है वो बहुत गवर्नमेंट सेक्टर्स भी अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी अवेलेबल. गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है और प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है, और कई इंस्टीट्यूट्स होता है जो बेसिकली डेडिकेटेड होते हैं पैरामेडिकल को, वहाँ पर भी अवेलेबल है. तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में कोई भी हम कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हम गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं. प्राइवेट में कहीं एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कहीं होते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं. वो डिपेंड करता है कि उनका ऊपर कि कौन कर सकता है डायरेक्ट और कौन कर सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. ये सारे जो है हमें नेट में अवेलेबल हो सकता है, या कई एजुकेशन पोर्टल होता है वहाँ पर भी जा सकते हैं जहाँ पर हम ओटी टेक्नीशियन का कोर्स अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं. ठीक है. और नॉर्मली ये वेबसाइट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन होगा सर? या सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर करता है, जैसे कि कहीं सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस होता है तो वो 10th बेसिस पे होता है, लेकिन गवर्नमेंट में जो जितने सारे कोर्सेस होता है वो 10+2 साइंस बेसिस पे ही होता है. ठीक है. एंड नॉर्मली साहब ड्यूरेशन क्या होता है सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज के? जरा अप्रॉक्सीमेटली अगर बता सके. सर सर्टिफिकेट का जो कोर्सेस होता है वो 6 महीने से लेके 1 साल होता है. डिप्लोमा का भी सर 2 साल से 3 साल होता है, और जो डिग्री होता है बीएससी बैचलर होता है वो 3 साल का कोर्सेस होता है. और बैचलर के बाद हम ओटी में करते हैं तो मास्टर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वो 2 साल का भी होता है. तो जो ड्यूरेशन है
तो ये तो गवर्नमेंट में जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन प्राइवेट में ये ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है। और साहब अगर एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहें कि एकेडमिक प्रोग्रेशन या करियर प्रोग्रेशन के लिए अगर किसी ने लेट अस से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया हो एंड वाज वर्किंग एंड वो फिर वापस आके ही वांट्स टू improve his career chances या academic qualifications, so he or she will be able to take up the next level basis जो certificate या diploma already acquire कर चुके हैं। सर जैसे कि कैरियर एनहेंसमेंट करना है, जैसे कि हम कोई क्वालिफिकेशन गेन कर रहे थे, कुछ कोर्सेस होता है जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स किया, उसके बाद वो डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। इसमें हम देखना है कि कई कोर्सेस होता है जो डिप्लोमा लेवल से शुरू होता है और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होता है, उस बेसिस पे हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन हम सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स का एडवांस डिप्लोमा कोई कर सकता है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट्स में देते हैं तो गवर्नमेंट में जो लेवल शुरू होता है वो होता है डिप्लोमा लेवल से। जब हम डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा का बेसिस पे हम डिग्री या बैचलर परस्यू कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू साहब ये क्लैरिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स एंड नॉर्मली जब भी वो करियर चॉइस करना चाहते हैं तो पेरेंट्स का भी काफ़ी हद तक रोल रहता है। सो हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वो कैसे डिसाइड कर सके ऑन व्हाट बेसिस कि ओटी टेक्नोलॉजी उनको पढ़ना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन? सो इसके बारे में थोड़ा अगर आप एडवाइस दे पाए कि और क्या ऑन व्हाट बेसिस दे शुड टेक अ डिसीजन, क्या क्या उनको देखना चाहिए इफ दे वांट टू टेक अप ओटी टेक्नोलॉजी एज अ करियर ऑप्शन। ओके सर, पहले तो हम कोई भी कैरियर को चूज करने से पहले कई क्राइटेरिया या फैक्टर्स होते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। हम जब पहले देखते हैं कि हम पैरामेडिकल फील्ड में आए हैं तो पैरामेडिकल में भी अलग अलग कोर्सेस होता है। तो कई लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो, कोई रेडियो की तरफ इंक्लिनेशन है, तो पहले हमें देखना है कि मुझे ओटी में मुझे क्यों इंटरेस्ट है या मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं है। मुझे इंटरेस्ट नहीं हो तो कोई भी कोर्स में हमें फ़ायदा नहीं होता है कि उस कोर्स को हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक कोर्स कर रहे हैं तो मैं भी इसी कोर्स को करना चाहिए। पहले मेरा इंटरेस्ट कौन सा कोर्स में, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोग ज़्यादातर ओटी में इंटरेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ऑपरेशन थिएटर में काम करना अच्छा लगता है, वो उस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा मानते हैं कि हम उस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ होगा कि मुझे इंटरेस्ट है कि ऑपरेशन थिएटर में काम करना। दूसरा फैक्टर्स आता है कि मेरा जो बेस है, मैं जिस फैमिली से आता हूँ उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मैं कोई कोर्स चूज करता हूँ। मान लो मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ तो एक्सपेंडिचर तो कम है, लेकिन जब मैं प्राइवेट में जाता हूँ तो वहाँ मुझे फ़ीस देना पड़ता है, तो फीस के अकॉर्डिंगली मैं पे कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरा होता है कि उसका अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं कोई कोर्स तो कर लिया, उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं। तो ओटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और जो इंडिविजुअल का अवेलेबिलिटी कम है। तो ये सारे क्राइटेरिया को हम ध्यान में रखते हुए कोई भी कोर्स को चूज करते हैं। ऐसे ही ओटी के लिए भी यही सेम क्राइटेरिया हम मान के चलेंगे कि मेरा इंटरेस्ट किस साइड है और मैं उसमें सक्सेस तब हो पाऊंगा जब मुझे आगे उसमें इंटरेस्ट को दिखाता रहूंगा। ठीक है साहब। और एक रिलेटेड क्वेश्चन था साहब कि ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए क्या साइंस होना ज़रूरी है स्कूल लेवल में? सर ओटी जो कोर्सेस अवेलेबिलिटी है वो पहले हम उसको सेग्रीट करते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो तो उसमें जो एंट्री लेवल होता है वो 10+2 साइंस जरूरी है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करते हैं तो साइंस हो सकता है या नॉन साइंस, दोनों ही उसको कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट वेरी कर सकता है। राइट सी। तो आप जैसे बताए कि एक क्राइटेरिया चूज करने का जो पेरेंट्स एंड बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज
कैसे होंगे। एंड आप जो बताए कि ओटी टेक्नीशियन एक ऐसा जॉब रोल है जहां पे द डिमांड फार आउटस्ट्रिप्स द सप्लाई। नेक्स्ट, आप जरा बता पाएंगे कि कौन से कंपनीज और हॉस्पिटल्स ओटी टेक्नीशियंस हायर करते हैं, पहली बात, और टिपिकली सैलरीज, रोल्स एंड पोजीशंस क्या ऑफर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री। सर, जो भी हॉस्पिटल्स है, चाहे लोकल लेवल हॉस्पिटल में हो या स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल में हो, जो भी हॉस्पिटल हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, हर जगह में ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल है। तो हर जगह में हमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई करता है या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का ज़रूरत है। तो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रेंथ क्या है। मान लो अब वो 100 बेडेड हॉस्पिटल हो सकता है, 1000 बेडेड हॉस्पिटल हो सकता है या कम बेड हॉस्पिटल हो सकता है। तो ये सारे क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का ज़रूरत है। तो हम देखेंगे कि जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जा सकता है, या प्राइवेट में जैसे आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, अपोलो ले लीजिए, मैक्स ले लीजिए, मेदांत ले लीजिए, तो वहाँ पर भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जा सकते हैं। उसको छोड़ के जो ऑपरेशन थिएटर से इक्विपमेंट से रिलेटेड है, जरूरी नहीं कि हम ऑपरेशन थिएटर में काम करें, क्योंकि एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन सेल्स में भी जा सकता है, मार्केटिंग में भी जा सकता है, प्रमोशन में भी जा सकता है, सर्विस में भी जा सकता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो कोर्स करने के बाद, जैसे कि फिलिप्स में भी इक्विपमेंट्स आता है, सैमसंग का भी इक्विपमेंट्स आता है, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनी में भी हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करके ओटी का छोड़ के बाकी काम भी कर सकते हैं। जरूर नहीं कि हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही काम करें, लेकिन बेसिकली जो काम है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही होता है। लेकिन हम उसको छोड़ के भी और भी फील्ड है जिसमें हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जो सैलरी का पॉइंट व्यू आता है, तो हम ये मान के चले कि एवरेज सैलरी जो है वो 30,000 पर मंथ के हिसाब से इंडिया में होता है। तो एवरेज सैलरी मतलब अराउंड 3.6 लाख पर ईयर जो है, लेकिन वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज सैलरी मान के चले कि 30,000 पर मंथ के हिसाब से हमें मिलता है। एंड इस ओटी टेक्नीशियन के करियर प्रोग्रेशन के बारे में जरा बताएंगे, क्या स्कोप है? जैसे आप बताए स्टार्टिंग सैलरी एवरेज 3.6 लाख, लेकिन फ्यूचर में करियर ग्रोथ का क्या ऑप्शंस हैं? सर, जो ओटी टेक्नीशियन करने के बाद हम कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोविड के टाइम पे देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कोविड अफेक्टेड एरिया में। तो जितना हॉस्पिटल्स बढ़ रहा है, तो इसका अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब से इन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होते जा रहा है कि इसका रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। ठीक है सर। सब इंडिया में तो क्या जॉब आउटलुक है ये तो आप बताएं, लेकिन अगर कोई ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स करके और कुछ एक्सपीरियंस भी हासिल कर ले, फिर विदेश में जाने का और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे जाने के लिए क्या कितना वो अर्न कर सकते हैं, और अगर उनको बाहर कोई जाना चाहे तो कोई एग्जाम्स या क्वालिफिकेशंस उनके लिए ज़रूरी है। सो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़रा अगर बताएं साहब, सैलरी लेवल्स, प्रोस्पेक्ट्स, कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, तो इनका डिमांड तो इंडिया में है ही, बाहर में भी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका इंडियन पैरामेडिक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम इंडिया में कोई भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे कनाडा हो, तो हम कहीं भी कंट्री में हम जाके जॉब कर सकते हैं। और उनका जो सैलरी होता है हमारा इंडियन सैलरी से 4-fold सैलरी वहाँ पर होता है। हम 4 गुना सैलरी वहाँ पर ले सकते हैं। इसलिए वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है हमारा अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड जो मेंटेन करते हैं वो हमसे ज़्यादा ऊपर स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं हॉस्पिटल ओटी का अंदर। तो उसका वहाँ जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो हम एब्रॉड में भी इसको एक कैरियर ऐसे चूज़ कर सकते हैं कि एब्रॉड भी हम जा सकते हैं, तो कैरियर को एनहेंस कर सकते हैं।
और इसके लिए कोई अलग से भी कोई सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है या इंडियन जो भी डिग्री हो या डिप्लोमा हो उसके बेसिस पे उनको नौकरी मिल जाए? अच्छा, कोई भी इंडियन रिकॉग्नाइज डिप्लोमा हो या डिग्री हो, रिकॉग्नाइज होना चाहिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, तो वो बाहर वैलिड है, हर कंट्री में वैलिड है। और बाहर जाने के लिए अलग अलग कंट्री के कुछ अलग अलग प्रोसीजर्स है, क्योंकि वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तो हमें कौन सा कोर्स के लिए और कैसे जाना है। और बाकी रहा उसके लिए कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसके लिए जब हम कोई भी कंट्री को चूज करते हैं उसका क्या रिक्वायरमेंट है उसी को देखना पड़ेगा। ठीक है, सो गुड। एंड अगला जो सवाल हम पूछना चाहते हैं कि ओटी टेक्नीशियंस के भविष्य, आई मीन व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर ओटी टेक्नीशियंस? अच्छा, फ्यूचर जो है, पहले तो हम देखते हैं कि हम कोई भी कोर्स करते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट मार्केट में क्या कंडीशन है। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो हेल्थ सेक्टर्स जो ऐसा फील्ड है जो आने वाले टाइम्स में ग्रोथ जो है उसका ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और आने वाले दिनों में भी हमारे लिए हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेक्टर्स जो है बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ओटी का जो टेक्नीशियन होता है उनका डिमांड जो है कभी आने वाले टाइम में कम नहीं होगा, ऊपर से ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बढ़ते जाएगा। राइट सर। सो आप जो बताएं साहब कि ओटी टेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए फ्यूचर इज ब्राइट, अगर कोई लड़का या लड़की ओटी टेक्नोलॉजी परसू, ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, एंड डिपेंडिंग ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। एंड आप जो बताए ओटी टेक्नीशियंस ऑपरेशन थिएटर में काम करने के अलावा वो मेडिकल कंपनीज में भी काम कर सकते हैं एज either as service or sales. So काफ़ी सारे opportunities है, and जैसे आप बताएं job opportunities available pan India, whether local या metro cities, सब जगह OT technicians की requirement होती है। and बाहर अगर कोई जाना चाहे उसके लिए भी there are a lot of options available अगर कोई बाहर। So I just I think thank you Dr. Patnaik, आप Thank you sir, thank you sir. कुछ बताए informative about OT technicians. So एक जो question है जो राहुल ने पोस्ट किया है कि जो आप partly आप already answer कर चुके हैं कि how has COVID pandemic affected the career in OTs, and क्या कुछ major changes आए हैं in OT operations because of COVID? कोविड के बाद जो हम अपॉर्चुनिटी टर्म्स में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पहले जो मैन पावर ज़रूरत होता था तो अभी से हॉस्पिटल उसी हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसा पेंडेमिक दोबारा आए तो हम उसको फेस कर पाए। जो मैन पावर है हम उसको बढ़ा रहे हैं, जब मैन पावर बढ़ा रहे हैं तो रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, जब रिक्रूटमेंट बढ़ेगा तो हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। दूसरा है कि हम हॉस्पिटल में चाहे ओटी का हो तो कोई भी स्टाफ हम उसको ट्रेंड करते हैं कि आगे से कोई भी पेंडेमिक हो तो हम उसको कैसे फेस करेंगे। पहले एक स्पेसिफिक जॉब होता था कि पर्टिकुलर काम करते थे, लेकिन अभी है कि हम मल्टीटास्किंग भी होना पड़ेगा क्योंकि कोई भी सिचुएशन को हम फेस कर पाए। ठीक है साहब, एक और सवाल जो आया है कि ओटी टेक्नीशियंस जॉब में क्या चैलेंजेस हैं, बिकॉज कोई भी आप करियर ले लो, कोई भी आप जॉब रोल ले लो, each has its unique set of challenges. So in your opinion, OT technician, what are some of the challenges that they face? Is something इसके बारे में if you can advise us. कोई भी कैरियर लेते हैं तो चैलेंजेस तो होता है। तो पहला चैलेंजेस ओटी में होता है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये नहीं कि जहाँ पर हमें लाइफ से रिलेटेड चीज़ है तो हमें हमारा अंदर कुछ ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए कि कोई भी ऑपरेशन चल रहा है 8 घंटा 12 घंटा,
तो उससे ज़्यादा भी आवर्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो हम उसके अंदर पेशेंसली, एक्टिवली और पार्टिसिपेट कर पाए। और हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमसे मिस्टेक्स हो सकता है। कोई भी पेशेंट आता है तो उसको हम पेशेंट को हम फ्रेंडली के हिसाब से बात करें और उसका जो मोराल है को बूस्ट करें, क्योंकि जब ओटी के अंदर पेशेंट आता है तो उसका मोराल है बहुत डाउन होता है। तो उसके साथ जब पहले कांटेक्ट में आता है वो कौन आता है? ओटी टेक्नीशियन ही तो आता है। तो हम उसको हैंडल कर पाने की जो पावर होता है वो हमारा अंदर भी होना चाहिए। तो एक तो होता है पेशेंस, हम पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए। और जो ओटी के अंदर जो पंक्चुअलिटी होना चाहिए, कहीं ऑपरेशन है 9 बजे तो मुझे पहले से आके प्रिपरेशन करना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, और मैं हर चीज़ को आंसरेबल हूँ वो भी होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया चैलेंज हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम इसको फेस कर पाए। So, साहब, as I understand, ये पेशेंट के साथ बेड जो बोलते हैं, डॉक्टर्स के बेड साइड मैनर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब होना ज़रूरी है। और स्टैमिना, बिकॉज आप अभी बताए कि ऑपरेशन 10-12 घंटा भी चल सकता है, बट नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है साहब ओटी टेक्नीशियन, एंड इज इट अ शिफ्ट जॉब? इसके बारे में भी अगर कुछ बताएं। हाँ सर, ये बेसिकली शिफ्ट जॉब होता है, क्योंकि हॉस्पिटल जो होता है 24 आवर्स रन करता है, राउंड द क्लॉक होता है। अराउंड द क्लॉक के अंदर कभी भी कुछ इमरजेंसी आ सकता है, ऑपरेशन का टाइम अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 12 आवर्स के लिए होता है। तो 2 शिफ्ट हो सकता है, 12 आवर्स का 2 शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जो आया है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, कि किसी ने अगर ओपन स्कूलिंग से 10th या 12th पास किया है, तो ओपन स्कूलिंग करने के बाद भी क्या ओटी टेक्नीशियन कोर्स ले सकते हैं? इसके बारे में जरा बताएं। सर, कोई भी ओपन स्कूल से कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ओपन स्कूल या NOI स्कूल, वो उतना ही वैलिड है जितना हमारे रेगुलर कोर्सेज है। जो ओपन स्कूल होता है वो गवर्नमेंट से ही होता है, तो उसका भी जो 10th हो या 12th हो उतना ही वैलिड है जितना हमारा रेगुलर 10th या 12th होता है। इसलिए ओपन स्कूल से करने के बाद भी हम ओटी कोर्स कर सकते हैं। ठीक, रिकग्नाइज्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दिस इज गुड। एक और सवाल जो है साहब, कि जॉब सिक्योरिटी कैसा है? बिकॉज कई ऐसे जॉब रोल्स है जहाँ पे बहुत इजीली जॉब से निकाल, जॉब आइदर इट बिकम्स रिडंडेंट, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई ओटी टेक्नीशियन का जॉब सिक्योरिटी एंगल से आपका क्या राय है साहब? बेसिकली ओटी टेक्नीशियन इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर सेक्टर्स या पैरामेडिक से रिलेटेड। हम इसी कोविड के टाइम पे देखें कि जो भी सेक्टर से, चाहे होटल इंडस्ट्रीज हो या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, उसमें हम मैन पावर को कम करने की कोशिश किए, क्योंकि हमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं था। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर ये इम्पैक्ट नहीं किया। हेल्थ सेक्टर्स में हमने किसी को निकाले नहीं, ऊपर से हमने रिक्रूटमेंट बढ़ाया, क्योंकि हमें मैन पावर अवेलेबल नहीं रहा। तो पेंडेमिक सिचुएशन में एक ऐसा फील्ड है, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर मैन पावर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, उल्टा उनका ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाता है। जब डिपेंडेंस बढ़ जाता है, हमारा रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है। ओटी भी उसी का अंदर ही आता है। इसलिए ओटी का जो स्टाफ है उनको हम कम नहीं करते हैं, उल्टा उनको हम स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली सही बताया साहब। बाकी सब सेक्टर्स में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन के चलते लोग वर्कर्स के रिक्वायरमेंट कम होते जा रहे हैं, बट आपने जैसे बताया हेल्थ केयर ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इट विल बी पीपल डिपेंडेंट, एंड कोविड जैसे पैंडेमिक के लिए ये रिक्वायरमेंट और भी बढ़ गई। एक और क्वेश्चन जो आया, कोई आप जैसे बताए कि क्लास 10 क्लास 12 करके भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मिनिमम परसेंटेज कट ऑफ है कि 50% या 60% होना जरूरी है? इसके बारे में जरा बताएंगे। सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में है कि
हमें एक मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, 45% होना चाहिए। तो क्राइटेरिया गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन में है, प्राइवेट में क्राइटेरिया जो है प्राइवेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्राइटेरिया रखेंगे, वो वेरी करता है इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पास होना चाहिए। ठीक है सर, गुड। सो इट्स कोई अगर एकेडमिकली उतना हाई नंबर नहीं भी आए, दैट पर्सन कैन आल्सो टेक अप ओटी टेक्नोलॉजी। एक और सवाल जो आया है साहब कि कोई आई एम ऑलरेडी एन ओटी टेक्नीशियन, तो अब इनका जो सवाल है कि हाउ कैन आई ग्रो in my career and how can I learn new technology, new techniques. So I think इनके माइंड में है कि ऑलरेडी वो ओटी टेक्नीशियन बन चुके हैं, अब आगे वो how can he acquire more skills and how can he grow his career. अच्छा, बेसिकली तो पहले देखते हैं कि वो किस लेवल का कोर्स कर रखे हैं। जिस लेवल का कोर्स वो ख़त्म करके जॉब में है, वो कोशिश करे कि उसका आगे लेवल वो एनहेंस करे, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो मैटर्स करता है हमें कोई भी फील्ड में। मान लो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो डिप्लोमा करे, डिप्लोमा कर रखे हैं तो ग्रेजुएशन करे, ग्रेजुएशन करे तो मास्टर्स करे, मास्टर कर रखे हैं तो पीएचडी करे। तो इससे तो क्या होता है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनहेंस हो जाएगा। जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनहेंस होगा तो फिर हम देखते हैं कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उससे ज़्यादा और कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है और वो बड़ा सेटअप है, वहाँ पर सीखने के लिए मुझे और ज़्यादा मिलेगा, फिर मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ ताकि मेरा कैरियर एनहेंस हो। तो ये डिपेंड करता है कि मेरे क्वालिफिकेशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि मेरा जॉब जो चेंज कर रहा हूँ मैं वहाँ पर जाके मेरा रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और मैं इससे ज़्यादा वहाँ सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ। तीसरा चीज़ है कि जो टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। मान लो मैं ओटी टेक्नीशियन बना 10 साल पहले, इस 10 साल में बहुत सारे चीज़ चेंजेस हो चुका है, इक्विपमेंट्स चेंजेस हो चुका है, ऑपरेशन थिएटर का स्टाइल चेंज हो चुका है, सिस्टम चेंज हो चुका है। तो वो सारे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ मुझे भी एक्वेंटेड होना चाहिए ताकि मेरे कैरियर को एनहेंस कर पाऊँ। आजकल साहब ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटाइजेशन, काफ़ी सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो ओटी टेक्नोलॉजी में भी क्या ऐसा कोई इम्पैक्ट हुआ है कि ऑनलाइन कोर्सेज की अवेलेबल आइदर फॉर अपस्किलिंग, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर ऑनलाइन तो अभी जैसे कि पेंडेमिक के टाइम देखिए ऑनलाइन ही एक ही सोर्स रह गया था, क्योंकि पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते हैं, सिस्टम चलना चाहिए। तो ऑनलाइन ही था कि हम ऑनलाइन में सारे चीज़ सीखें। लेकिन जब ओटी से रिलेटेड चीज़ आता है या पैरामेडिकल में आता है, प्रैक्टिकल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रखता है इसमें। तो ऑनलाइन के साथ साथ हम प्रैक्टिकल की तरफ भी होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल भी उस चीज़ को कर पाए। हम खाली ऑनलाइन में तो थ्योरी तो कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हमें लैब का रिक्वायरमेंट है, ओटी का रिक्वायरमेंट है। तो वो दोनों चीज़ को ही हमें बैलेंस करना चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है सर। सो कभी भी एकदम सही बताया कि कोई भी स्पेशली हेल्थ केयर में इट कैन नेवर बी अ कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स। एक सवाल जो सूरज कुमार जी कि कोई स्किल इंस्टीट्यूट, एग्जिस्टिंग स्किल इंस्टीट्यूट अगर ओटी टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू करना चाहे तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, आइदर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी या क्या राय होगा अगर कोई स्किल इंस्टीट्यूट है, दे वुड लाइक टू ऑफर अ कोर्स इन ओटी टेक्नोलॉजी, सो क्या हाउ कैन दे गो अबाउट इट? देखो इंस्टीट्यूट के लिए, स्किल इंस्टीट्यूट के लिए जो क्राइटेरिया है वो एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर है, मेंशन है। तो उसी का जो रिक्वायरमेंट है हमें उसी को फॉलो करना है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है। एंड ये एनएसडीसी के वेबसाइट पे मिल जाएगा? हाँ, एनएसडीसी के वेबसाइट। सो आई थिंक एक जो क्वेश्चन और आया था कि कोर्स फी, इसके बारे में आप शायद कुछ बताए थे कि
गवर्नमेंट कोर्सेज के अलग होते हैं एंड प्राइवेट के अलग होते हैं। इसके बारे में अगर आप और भी कुछ जानकारी दे पाए तो दैट विल बी गुड। सर रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर जो है, मान लीजिए हम गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट होते हैं तो उसका फी स्ट्रक्चर नॉमिनल होता है, ना कि बराबर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोशल सर्विस में है, तो कि वो गवर्नमेंट हमें जो फी स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट बियर करता है। बाकी रहा प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होता है, वो फी स्ट्रक्चर जो होता है वो उनका पर डिपेंड करता है, लेकिन जो डिप्लोमा लेवल का जो फी स्ट्रक्चर होता है वो अराउंड 40 to 50 होता है, या डिग्री लेवल का जो होता है वो अराउंड 60 to 70 होता है। इसी रेंज में रहता है, वो वेरी कर सकता है किसी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी प्राइवेट में। और कई बार स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट देता है, चाहे हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं, कहीं स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देता है, तो वो डिपेंड करता है कि जब हम उसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर स्कॉलरशिप का सुविधा है तो स्कॉलरशिप का सुविधा ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट का ऊपर, ये नहीं कि हम पूरा इंडिया में एक रूल लागू करें। ठीक है। दूसरी बात है, ये ओटी टेक्नोलॉजी जो कोर्सेज हैं ये हर एक स्टेट में अवेलेबल है नॉर्मली, बिकॉज ये ना हो कि कोई अगर ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहे देन उसे कोई दूसरे स्टेट में या कोई मेट्रो सिटी में आके करना हो। इट इज अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री, वाइड। लगभग सर ये हर स्टेट में अवेलेबल है, तो ये डिपेंड कर सकता है कि मैं कहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, और जो इंस्टीट्यूशंस होता है किसमें क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, उनका कमिटमेंट क्या है, वो वेरी कर सकता है, लेकिन हर स्टेट में ये अवेलेबल है। गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये NCAH नेशनल काउंसिल ऑफ अलाइड हेल्थ केयर का कोई आई थिंक रेगुलेटरी एक्ट उन्होंने जारी किया है। So OT technicians क्या they also come under the category of allied healthcare professionals? Yes sir, ये भी आएगा, NCH के अंदर आएगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट बिल पास किया है, अभी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। So ये ऑल इंडिया टाइम लगेगा, ऑल इंडिया बेसिस में से कोई काउंसिल था नहीं है, अभी इसी बार गवर्नमेंट ने पास किया है तो बिल को, तो इसमें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। बट एक बार जब ये हो जाएगा देन आई थिंक हर एक ओटी टेक्नीशियंस को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा शायद, जैसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वो देखना कि किस लेवल से वो नेशनल काउंसिल के अंदर आएगा, किस लेवल से, क्योंकि हम सारे चीज़ को मान लो काउंसिल के अंदर रख लेंगे तो इतना मैन पर मुझे नहीं लगता है कि सप्लाई हो पाएगा हॉस्पिटल्स को, तो एक लेवल से वो करेंगे कि जो काउंसिल के अंदर आए, क्योंकि मैन पावर भी तो चाहिए सर। एकदम सही बात, सही बात। एंड जैसे आप बताए ये लागू होने में भी इट विल टेक सेवरल इयर्स, क्योंकि बिल अभी पास हुआ। ठीक है साहब, I'd like to thank you very much for your time.